Who could be next Mr. 360 if you have to take two names? And I think from India, probably Sky is the closest. I think Surya Kumar Yadav. He's a bit older. If I have to look at the younger generation, maybe Vaibhav Suryavanshi, someone like that. He's only 14 years old, still got a lot to learn. Isn't that crazy, that inning, 100? It's amazing. I didn't think it could ever stop. It's the 14-year-old boy who set the Pink City alight. एक तरफ सना भाई सूर्यवंशी है जो ऐसी ऐसी बॉलों पे शॉट्स लगा रहा है कि अभी स्टैट्स मैंने कुछ देखे हैं कि गुड लेंथ पे यार 400 का स्ट्राइक रेट उसका आईपीएल के अंदर चल रहा है। और इसी असना में एक अपने दौर के लेजेंड ने जो है उनके लिए जो है ना कुछ अल्फाज कहे हैं। और मेरा ख्याल है कि लेजेंड्स जो अपनी गेम में लेजेंड हो उसके बातों को जरा गौर करना चाहिए। और वो बात कही है एबी डिविलियर ने। Vaibhav Suryavanshi, absolutely crazy. He's still a youngster. He's a baby. We saw him perform at the IPL, and I thought, okay, hold on, this guy's got some talent, but there's going to be a lot of obstacles, ups and downs throughout his career. Went back to the under-19s. I think for most players or people who sort of get a taste for the highest level, to step down and find that same kind of passion and drive and intensity at a lower level is really difficult. And I've got so much respect for him at his young age to have the maturity to come a step down. You could easily be arrogant about it and go like, this is not for me, this is too low as of a level. But he was so professional in his performances. I'm not only talking about the many runs he scored. Yes, highest run scorer of the tournament, trophies left, right and center, medals, great stuff. But the way he carried himself, the way he approached each and every single game, every single ball he faced with a lot of aggression, a lot of skill, but determination. He does the basics well, and it shows you it doesn't matter what kind of level he plays at. He loves the game and he wants to do well. He wants to become a great. And I still stick to my story. There will be a lot of ups and downs. It's not going to be all smooth sailing for him. But we all know the mental side of the game plays a huge role in someone's career. And he will have to face those battles at some stage where there might be a lean patch or two. You'll start feeling the expectation of having to perform every single game. But I've no doubt that he's got what it takes to find a way to work through that. He's already showing signs, stepping down a level and still showing the same kind of basic. वैभव सूर्यवंशी को जल्द से जल्द टीम इंडिया में डेब्यू का मौका मिलना चाहिए। हर कोई बस यही गुणगान कर रहा है। और साफ तौर पर आईपीएल 2026 में जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद गेंदबाज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया हो। चाहे सिराज की बात कर लें, चाहे फिर काइल जेमिसन की। लेकिन यहाँ पर पूर्व साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी एबी डिविलियर्स इससे कुछ अलग राय रखते हैं। हाल ही में वो स्टार ब्रॉड के एक पॉडकास्ट चैनल पर नजर आए, जहां पर उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को लेकर खुलकर बातचीत की। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों को ये लग रहा है, लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में डेब्यू करा देना चाहिए, लेकिन ये एक आसान रास्ता नहीं है। वैभव सूर्यवंशी के लिए रास्ता काफी कठिन होने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि अगर वो सिर्फ T20 क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, तो 15 साल की उम्र में जिस तरीके का वो कमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पर T20 क्रिकेट में धमाल मचा सकते हैं, चाहे वो टीम इंडिया की जर्सी क्यों ना हो। एबी डिविलियर की बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि अगर आपने लेजेंड बनना है ना, यानी कि छाना है, जिसको कहते हैं क्रिकेट पे डोमिनेट करना है, तो उसके लिए तो बॉस फिर करना पड़ेगा, टेस्ट खेलना पड़ेगा, टेम्परामेंट आजमाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शोएब भाई एबी डिविलियर कह रहे हैं गुरु ऑफ एटलीस्ट T20 क्रिकेट। वैसे तो ऑन द होल जैसे 360 उनको कहते हैं, मैं कहता हूँ तीनों फॉर्मेट के वो 360 प्लेयर हैं, कोई दो राय नहीं है। उनकी स्लोएस्ट इनिंग भी टेस्ट में उनके पास है, फास्टेस्ट इनिंग भी फॉर्मेट में एक में उनके पास है। सो मतलब दोनों चीजें उनके पास हैं। और मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप के ऊपर एक ठप्पा नहीं लगना चाहिए, जैसे अभिषेक शर्मा के ऊपर है अभी एट द मोमेंट कि वो सिर्फ T20 का प्लेयर है। टेस्ट की तो दूर की बात, कोई वनडे में भी उस तरह से नो वन T20 सेंसेशन है। T20 सेंसेशन क्या है? जैसे यार सहवाग मतलब जो भी है बड़ा प्लेयर सीगा, वो बंदा T20 वनडे टेस्ट तीनों फॉर्मेट, मतलब T20 तो खैर उस टाइम पे ज्यादा नहीं होते थे, बट वो आईपीएल तो खेला ही होगा, वो तीनों फॉर्मेट का जांबाज किस्म का प्लेयर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन कोच क्रिस गेल से ना भाई, क्रिस गेल, गौतम गंभीर, सारे इंडिया की एग्जांपल ले लें, गौतम गंभीर देख लें आप, वो भी तीनों फॉर्मेट का तगड़ा प्लेयर था। ठीक है, वर्ल्ड कप 2007 उठा के देख लें उस बंदे की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। वैभव सूर्यवंशी को लेकर एबी डिविलियर्स ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी हैं, पहले वो जो है साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं और उसके बाद वो आरसीबी में भी खेल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरीके से संन्यास ले लिया है। लेकिन उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या कहा है? मुझे लगता है कि सूर्यवंशी के बारे में जो बोला
एबी डिविलियर ने बिल्कुल ठीक है कि आप कब तक चलेगा ये वाला मामला। उसने बोला ये कब तक होगा, आई डोंट नो, बट अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं आपका नाम आगे तक चलता है। और वाकई आज भी कोई भी बड़ा क्रिकेटर अगर माना जाता है, चाहे कोई कितना ही उनसे बड़े एक फॉर्मेट के अंदर प्लेयर हो, मगर प्लेयर बड़े की काउंटिंग वही होती है कि तीनों फॉर्मेट जो खेलता हो, चाहे वो बॉलर है चाहे बैट्समैन है। आज भी अगर बुमराह का जिक्र किया जाता है कि बॉलर क्या नंबर 1 है, तो सब कहते हैं हाँ तीनों फॉर्मेट का अच्छा बॉलर। ये नहीं कहा जाता कि T20 का अच्छा, कहा जाता कि तीनों फॉर्मेट का अच्छा। अगर विराट कोहली, मुझे अभी किसी से बात हो रही थी, उसने बोला कि विराट कोहली को T20 में स्काई सबसे पसंद था, सूर्य कुमार यादव। वो कहता था कि यार ये T20 का स्पेशलिस्ट बैटर है, मगर लोग विराट कोहली को हर टाइम पे जब से वो फॉर्मेट के लिए एटलीस्ट आखिरी 5-10 ट्रू लेजेंड मानते हैं उसको, ट्रू लेजेंड, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलता है। खैर हमने बड़े बड़े क्रिकेटर्स का नाम ले रहे हैं, आई डोंट नो कि आने वाला साल 2 साल 5 साल सूर्यवंशी को कहाँ ला खड़ा करता है। इनका एक प्लेयर और भी था इसी तरह का, पृथ्वी, वो भी धांसू किस्म का प्लेयर था, मगर वो अपने जिसे बोलते हैं ना शायद ग्लैमर में खुद ही कहीं खो गया, आई डोंट नो। बट ये बंदा, इस बंदे के गुर तो कुछ और हैं नो डाउट। अभी तक तो वो बिल्कुल सही चल रहा है, लास्ट आईपीएल की निस्बत इस बार निखरा नजर आ रहा है। अंडर 19 खेला बहुत तगड़ा है, मैंने फर्स्ट क्लास के 8 मैचेस देखे हैं। रेड बॉल में ज्यादा अच्छा नहीं किया हुआ, 150 है उसकी, मगर लिस्ट ए में बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है उसका, 160 प्लस की स्ट्राइक रेट है, बहुत धांसू। इवन के रेड बॉल में भी 100 का स्ट्राइक, 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है, मैं आपको बता रहा था। छोटा खेला भी, ज्यादा नहीं खेला, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रेड बॉल खेल नहीं रहा, ऑफ कोर्स वो खेलेगा। उसको भी पता है कि आपको कहीं पर भी कैसी भी सिचुएशन की पिच मिल जाएगी, कोई सिनेरियो मिल जाएगा जहां पे रोकना पड़ेगा, वो सब गियर तो आने चाहिए। नो डाउट रोकने वाला T20 में वो दिखता नहीं है कहीं से भी, मगर रेड बॉल खेलेगा, वो लिस्ट ए भी खेलेगा, उसको कैरी करेगा। 150 स्कोर किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर उस बंदे ने, और लिस्ट ए के अंदर इसका रिकॉर्ड है मेरे ख्याल 200 के करीब रन है, 190 पता नहीं कितने रन है इसके, मैं देख रहा था। सो लिस्ट ए भी खेल रहा है, 8 मैच खेले हैं लिस्ट के अंदर, तकरीबन 350 रन है इसके लिस्ट ए के अंदर, 160 का स्ट्राइक रेट है। रेड बॉल में अभी 8 इनिंग खेली, 8 मैचेस खेले हैं, कुछ ज्यादा डेकोरेटिव नहीं, सिर्फ 150 है। बाकी ये बात ठीक है एबी डिविलियर की, अगर रेड बॉल खेलेगा वहां पर भी इक्वली नाम कैरी करेगा तो वो बनेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि रेड बॉल खेले, इसका मतलब ये कि नाम उधर भी इतना ही कैरी करे जितना यहाँ पे कैरी कर रहा है। Vibe of Suryavanshi, someone like that. He's only 14 years old, still got a lot to learn. Crazy, that inning 100. It's amazing. I didn't think it was possible, honestly. जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जाता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक, फिर उसने याद रखिएगा ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस, इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है, और जुनून तो है ही है इसके अंदर। 15 साल का लड़का उस बॉलर को जिसको लोग मारने से डरते हैं, उसको पहली दफा लाइफ के अंदर फेस करना, और उसकी पहली बॉल के ऊपर छक्का मार दिया। प्रॉपर डिस्ट्रक्शन मोड दिखा यार वैभव सूर्यवंशी, क्या खेलते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन मोड में आपको क्रिकेट नजर आती है। ऐसा लगता है कि क्रिकेट बड़ी आसान हो गई। एक 15 साल का लड़का उस बॉलर को जिसको लोग मारने से डरते हैं, उसको पहली दफा लाइफ के अंदर फेस करना, और उसकी पहली बॉल के ऊपर छक्का मार दे। कसम खानी पड़ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। और यही नहीं, पहली 3 बॉलों के ऊपर उसको 2 छक्के मार दे। यार तुम जो मर्जी समझो, मेरी नजर के अंदर वैभव सूर्यवंशी सच्ची के अंदर एक बहुत शानदार किस्म का दलेर लड़का है। बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, और उसने शो किया। मतलब 16 साल का ही है ना, जब वो आया तो वो लगा, देखा जब उसको तो 14 साल का लगा, वो बिल्कुल ही छोटा लगा। मैंने कहा इसने करना है यार। उसको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वो हाइप अप हो गया, बहुत ज्यादा किया। अच्छा वो डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर है, वो आम प्लेयर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। बड़े कम इंडिया के ऐसे ओपनर बैट्समैन मैंने देखे जिनकी इतनी जबरदस्त टाइमिंग है बैटिंग के अंदर, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। ओ भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी, उम्र पता है इसकी कितनी है? घंटे के इतनी उसकी उम्र पता है क्या है? तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई, याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। जिस मुल्क में स्कूल क्रिकेट 3 डे 2 डे हो रही हो तो फ्यूचर तो ब्राइट तो होगा ही। प्लेयर नहीं कर सका, युवराज जैसा प्लेयर नहीं कर सका, उस बंदे ने 14 साल में उठ के 19 साल आईपीएल की हिस्ट्री बदल के रख दी। पहली गेंद देखा और बुमराह को पहली गेंद 88 मीटर का छक्का मारा। मानो बुमराह को स्टेटमेंट दिया हो कि भैया आप होंगे दुनिया के बेस्ट बॉलर, हम तो ऐसे ही खेले। बड़े खड़े छक्के मार रहा है, खड़े छक्के मार रहा है। अब सोचो कि उसकी हाथों में, उसकी 4 आर्म्स में, उसकी टांगों में, उसकी कमर में। यार ये 15 साल का वैभव सूर्यवंशी क्या चीज खाता है ब्रो, कसम से यार ये तो अलग ही लेवल का प्लेयर है। आज भाई दुनिया के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर को
पहली 3 गेंदों के अंदर 2 छक्के दे मारे जसप्रीत बुमराह को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। दुनिया के मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि अगला मिस्टर 360 वैभव सूर्यवंशी होगा। साथ ही साथ उनके करियर को लेकर भी एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि अभी से वैभव सूर्यवंशी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाना अभी अच्छा नहीं होगा। अभी उनको T20 में तो ठीक है, लेकिन वो ODI और टेस्ट में इनको अगर नाम कमाना है तो अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दोस्तों, मिस्टर 360 बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने T20 मैचों में वैभव सूर्यवंशी के कारनामे देखे हैं और इतना जल्दी इनको बड़ा ग्रेट प्लेयर मानना हमारा लिए अच्छा नहीं होगा। उनका साफ कहना है कि उनके पास तो पोटेंशियल है। एबी डिविलियर्स का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी के पास एक महान खिलाड़ी बनने का पोटेंशियल तो है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि उनको हम मौका दे दें और पृथ्वी शॉ की जैसा ना हो जाए, क्योंकि एक समय पृथ्वी शॉ को भी सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा टैलेंटेड बता रहे थे, लेकिन उनका जो कैरियर है वो तबाह हो गया। वो ग्लैमर्स में आ गए और अपना फिटनेस इतना ख़राब कर दिया कि वो क्रिकेट क्या, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्या, IPL में भी उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रहा है। तो वैभव सूर्यवंशी के लेकर डिविलियर्स ने जो बयान दिया है कि अगला मिस्टर 360 वैभव सूर्यवंशी तो बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन अगर एक महान ग्रेट टेस्ट खिलाड़ी बनना है तो उन्हें तीनों फॉर्मेट में है ऐसा जलवा दिखाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी तीनों फॉर्मेट में ऐसा ही जो T20 में अभी कर रहे हैं वैसा तीनों फॉर्मेट में कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।